Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome all for the video series of Linear Integrated Circuits 22423. Today I am going to deliver a lecture on Chapter 5, Specialized IC Application. And today's topic of discussion is IC 555 Timer. The course outcome for this course as troubleshoot specified applications using various linear ICs. Whatever the linear ICs we have studied in this lecture, we are able to troubleshoot particular specified application using these ICs. The chart shows the CO and PO mapping. Here the CO5 getting mapped with PO1, PO3, 4, 6 and 7, where it getting mapped with the PO3, 4 and 7 at the highest level, while for the PO1 and the PO6 it is for the moderate level. Learning outcomes. After the completion of this topic, students will be able to describe with sketches the working of the IC 555 for the given application. आप लोग IC 555 का स्केच निकाल के उसका वर्किंग पढ़ सकते हो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए. उसके बाद में you can be able to calculate the duty cycle of the given type of multivibrator. We will go for the mode of the operation of IC 555, जिसमें से आप लोग एक मल्टी वाइब्रेटर का पार्ट पढ़ोगे, जिसमें आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी वाइब्रेटर आप पढ़ने वाले हो. इन द लास्ट लेक्चर वी वर स्टडी अबाउट, क्या पढ़ा हमने, तो डेफिनेशन ऑफ फिल्टर देखा था. उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर देखा था. स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग फिल्टर, फिल्टर्स के डिजाइन करने के लिए कौन से स्टेप्स है वो भी हमने वहां पे देखा था. न्यूमेरिकल्स हमने पढ़े थे और ऑसिलेटर एंड देयर टाइप्स भी आपने देखा था. इंट्रोडक्शन. लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. हियर द IC 555 was designed in 97 by Hans Kaminside under contract to Signetics Corporation. Basically, देखो, this is the IC 555. देखा, this is the 8-pin IC. Normally, this 8-pin IC was designed in 1971 by Hans Kaminside under contract of Signetics Corporation. बराबर है. Signetics Corporation के अंडर के कॉन्ट्रैक्ट में हंस कैमेंजिड ने 1917 में ये आईसी को डिजाइन किया था. It is a highly stable circuit. It is highly stable circuit which is used to generate the time delays of the oscillator. ऑसिलेशंस को जनरेट करने के लिए और टाइम डिलेस को जनरेट करने के लिए नॉर्मली IC 555 का यूज किया जाता है. A single 555 timer can provide time delay. A single 555 timer can provide time delay ranging from microsecond to hours. क्या बोल रहा है? अगर आप लोग सिंगल चिप यूज कर रहे हो टाइमर IC 555 के, तो यू के मतलब वो प्रोवाइड करेगा क्या, टाइम डिले ऑसिलेशन विच इज रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोसेकंड से लेकर के आवर्स तक के ऑसिलेशन ये IC 555 आप लोगों को क्या बोलते टाइम डिले प्रोवाइड कर सकता है. तो इसीलिए इस IC को आप लोग टाइमर IC भी बोलते हो. It operates from a wide range of power supplies ranging from plus 5 volts to plus 18 volts supply voltage. ठीक है, so this is all about the introductory part of IC 555. Now let's go for the pin configuration. क्या है पिन कॉन्फ़िगरेशन? ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि दिस इज अ 8 पिन IC. देखो यहाँ पे देखेंगे, this IC 555 is a 8 pin IC which consists of the total different 8 pins, out of which number 1 pin is for the ground, second is for the triggering, third is for the output, 4 is for the reset, fifth is for the control, 6 is for the threshold and 7 is for the disconnect and 8 is for the VCC. मतलब यहाँ पे पावर सप्लाई आएगा. ठीक है, यहाँ पे डिस्चार्ज आता है. देन देखो, द फंक्शन ऑफ ईच पिन ऑफ द IC इज गिवन बिलो. कैसे फंक्शन होते हैं? तो फर्स्ट वन इट इज फॉर द ग्राउंड, second one is for the triggering of the input voltage, third pin is for the output, 4 is for the reset, I already told you, pin 5 is for the control voltage, 6 for the threshold, 7 for the discharge and 8 for the VCC, that is the positive power supply. I hope everyone understand. आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, ड्रॉ द पिन डायग्राम ऑफ IC 555. उसमें आप लोगों को कौन से पिन का कौन सा फंक्शन है ये भी आप लोगों को बताना है.
ठीक है। तो दिस इज द IC555। नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग जो भी ये IC555 का पिन डायग्राम पढ़ते हो, तो अगर आप लोग इसको समझ के लेते हो कि ये पिन डायग्राम में क्या है एग्जैक्टली, तो आपको समझेगा कि ये पिन डायग्राम कंसिस्ट ऑफ द 8 पिन, और उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पिन दिए हैं। मतलब आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले पिन के साथ आप लोग ऑल द वोल्टेज, मतलब जितने भी वोल्टेज आप लोग इसको प्रोवाइड करोगे वो मेजर करोगे। उसके बाद में अगर आप लोगों का टर्मिनल वोल्टेज 1/3 VCC से कम आता है या फिर फॉल्स बिलो द 1/3 VCC, उसके बाद में आप लोगों का ट्रिगर जो है वो कंपैरेटर गिव्स द हाई आउटपुट। उसके बाद में आउटपुट चेक करोगे। रीसेट पिन आप लोगों को क्या करना है, डिसेबल करना है निगेटिव पल्स देने के बाद। उसके बाद में फिर से रीसेट करना है। देन आप लोग अगर ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हो तो आपका PNP ट्रांजिस्टर ऑन होगा एंड द बेस मेड इज लो एंड रिमेन्स ऑफ। उसके साथ साथ कंट्रोल वोल्टेज आपको दिया गया है। एक्सटर्नल वोल्टेज आप लोग अप्लाइड कर रहे हो थ्रू द टर्मिनल चेंजेस और द थ्रेशोल्ड एज वेल एज द ट्रिगर वोल्टेज। उसके बाद में थ्रेशोल्ड और डिस्चार्ज का पिन दिया हुआ है। वोल्टेज अगर आप लोगों का 2/3 VCC से ज्यादा है तो आप लोग यूज करोगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद में डिस्चार्ज, द पिन इज इंटरनली कनेक्टेड टू द कलेक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर। When the output goes high, the internal transistor turns off. At that time, discharge आप लोगों का स्टार्ट होगा और VCC, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द IC555। देन यहाँ पे देखो फंक्शनल डायग्राम दिया हुआ है। दिस इज अ फंक्शनल डायग्राम ऑफ IC555। आप लोग देखोगे कि यहाँ पे SR फ्लिप फ्लॉप अलॉन्ग विद द ट्रांजिस्टर आप लोग देखोगे। यहाँ पे आप लोग अगर आईसीज को देखते हो तो यहाँ पे देखो दो ऑप-एम्प आईसीज यूज किए हैं। ऑप-एम्प आईसीज में आप लोगों को कनेक्ट किया है किसको, IC555 को, जिसके 1 2 देखो डिफरेंट डिफरेंट पिंस है। वो कहाँ कहाँ कनेक्ट किए ये भी आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। और उसके साथ साथ आप लोग रीसेट और आउटपुट में इन्वर्टर लगा रहे हो थ्रू द SR फ्लिप फ्लॉप। देखो यहाँ पे देखोगे SR फ्लिप फ्लॉप में एक आप लोगों को जो क्या बोलते हैं उसको, क्यू फैक्टर जो रहता है वो कैसे रहेगा। अगर आप लोग 0 0 सेट करते हो दोनों ऑप एम्प को, दोनों इनपुट को, तो आप लोगों के प्रीवियस और मतलब दोनों भी SR फ्लिप फ्लॉप का टाइमर जो रहेगा वो प्रीवियस स्टेट पे रहेगा माइनस में, और स्टेट पे रहेगा। 0 1 अगर देते हो तो सेम 0 1 आपको मिलेगा, 1 0 देते हो तो 1 0 मिलेगा, 1 1 देते हो तो नथिंग, नॉट अवेलेबल। अगर 1 1 आप देते हो यहाँ पे तो देयर इज नो अवेलेबल, कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो देखो अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज अगर आप प्रोवाइड करते हो तो आप लोगों का अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज 2/3 से ज्यादा है तो आप लोगों के रीसेट का जो लॉजिक है वो 1 रहेगा। वही अगर आप लोग का थ्रेशोल्ड वोल्टेज 2/3 से कम है तो आपका लॉजिक 0 रहेगा, ठीक है। देन वी विल गो फॉर द ट्रिगरिंग वोल्टेज। ट्रिगरिंग पल्सेस में अगर आप जाओगे तो ट्रिगर अगर आप लोगों का लेस देन 1/3 VCC है तो आपका लॉजिक 1 रहेगा, मतलब S फ्लिप फ्लॉप। और वही अगर आप लोगों का ग्रेटर है तो 0 रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों का ट्रिगर पिन और थ्रेशोल्ड पिन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिन्स फॉर दिस फंक्शनल डायग्राम ऑफ IC555। देन मोड्स ऑफ द ऑपरेशन कौन से मोड्स ऑफ ऑपरेशन में देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड। तो IC555 एप्लीकेशन 2 डिफरेंट इसमें आप लोग क्लासिफाइड करते हो। वन इज द मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, सेकेंड वन इज द अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। लेट्स स्टार्ट विद द मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इज ऑफन कॉल्ड एज अ वन शॉट मल्टीवाइब्रेटर। इसको क्या बोले जाते हैं, मोनो है, इसलिए इसको आप नाम क्या दोगे, इट इज अ वन शॉट मल्टीवाइब्रेटर। डायग्राम दिखाई दे रहा है आप लोगों को। दिस इज IC555 के अलॉन्ग आप लोगों ने क्या किया, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को ये किया। अभी देखो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कैसे वर्क करता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे टर्मिनल 2, दिस इज अ टर्मिनल 2 विच कंसिस्ट ऑफ द ट्रिगरिंग वोल्टेज, विच कंसिस्ट ऑफ द ट्रिगरिंग इनपुट। अभी आप लोग क्या कर रहे हो, वोल्टेज इज हाई, यहाँ पे वोल्टेज क्या रहेगा, हाई, एंड आउटपुट इज कंसिडर्ड लो। एट दैट टाइम आपका आउटपुट क्या करेगा, लो। एंड आपका जो IC555 का इंटरनल ट्रांजिस्टर है वो टर्न्स ऑन विथ शॉर्ट एक्सटर्नल कैपेसिटर, बराबर है। इफ अगर आप लोगों ने टर्मिनल 2 मतलब ट्रिगर को अगर 0 पल्स दिया, निगेटिव पल्स दिया, 0 पल्स दिया, तो आपके ट्रिगर का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और जो सेट करेगा फ्लिप फ्लॉप को, और उसके कारण आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई। मतलब यहाँ पे अगर आप लोगों का क्या रहा,
0 तो यहाँ पे रहेगा 1। ठीक है, अभी क्या होगा, कैपेसिटर जो है वो आपका चार्ज होना शुरू होगा टूवर्ड्स वीसीसी। और जब तक के कैपेसिटर 2/3 वीसीसी, मतलब यहाँ पे देखो 2/3 वीसीसी पे नहीं पहुंच जाता, VCC, then the threshold comparator resets the flip flop। उसके बाद में क्या करेगा, थ्रेशोल्ड जो है वो आप लोगों का क्या करेगा, थ्रेशोल्ड जो मतलब पिन नंबर 6 आप लोगों का कंपैरेटर रीसेट करेगा फ्लिप फ्लॉप पे और आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। नाउ अभी जैसे आउटपुट लो होते जाएगा, कैपेसिटर अगेन स्टार्ट्स टूवर्ड्स द डिस्चार्जिंग, बराबर है। और तब तक के ये ऑफ रहेगा जब तक ट्रिगर नेक्स्ट इनपुट को नहीं देता। द पल्स विच विड्थ ऑफ द इनपुट ट्रिगर मस्ट बी स्मॉलर देन द एक्सपेक्टेड पल्स। देखो यहाँ पे क्या होता, आउटपुट वेवफॉर्म्स आपको मिलते हैं। सबसे पहले कि ट्रिगर पल्स क्या है, देन आपका कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज मोड पे आता है, देन वी विल गेट द स्क्वायर वेव, जिसका आप लोगों ने टाइम डिले t इज इक्वल टू टी ऑन। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अपन, यहाँ पे देखोगे आप लोग तो ट्रिगर पल्स, मतलब देखो ये हो गया ट्रिगर पल्स और आप लोगों का आउटपुट आप लोगों को इस हिसाब से मिलेगा, बराबर है। ट्रिगर आप लोगों को 1/3 वीसीसी, मतलब आप लोगों को थ्रू द कैपेसिटर ट्रिगर पल्स से आप लोगों को 1/3 वीसीसी से ज्यादा या कम, और देन वी विल गेट द आउटपुट पल्स व्हिच इज हैविंग अ टाइम डिले इज इक्वल टू 1.1 r into c। तो दिस इज द डायग्राम, ठीक है। देन व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस फॉर द मल्टी वाइब्रेटर। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवाइडर वन ऑफ द एप्लीकेशन एंड द सेकंड वन इज द टच प्लेट स्विच। लेट्स स्टार्ट विद द फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। दिस इज द डायग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी डिवाइडर अलोंग विद द IC 555। आप लोग देखोगे कि अभी ये जो IC 555 इट इज इन द मोनोस्टेबल मोड, जिसमें आप लोगों का टी ऑन जो रहेगा ग्रेटर देन द टाइम पीरियड ऑफ द इनपुट। यहाँ पे उसका जो ऑन टाइम पीरियड जो रहेगा दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द इनपुट सिग्नल। नाउ व्हेन द निगेटिव गोइंग पल्स, जब आप लोगों का टर्मिनल 2 पे निगेटिव गोइंग पल्स रहेगा, देन आपका आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगा, बराबर है। आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगा और तब तक के हाई रहेगा जब तक आप लोगों का टाइम पीरियड, मतलब प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड कौन सा है, टी ऑन इज इक्वल टू 1.1 r into c मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। जैसे ही टी ऑन पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, टी ऑन पीरियड बढ़ता जाएगा, इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द पीरियड टाइम, मतलब इनपुट सिग्नल से आप लोगों का टाइम टी ऑन पीरियड अगर बढ़ता है तो आप लोगों के निगेटिव गोइंग पल्स फ्रॉम इनपुट विल नॉट मेक, मतलब आउटपुट में उसका कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया गया टी ऑन इज ग्रेटर देन टी इन, ठीक है। If the time period of the monostable is adjusted to 3 times 4 times greater than the time period of the input signal, then we will get the T on is greater than the 2t where frequency f by 2, T on is greater than 3t when the frequency is f by 3 and the T on is greater than 4t then f by 4। तो डिस टाइप से आप लोगों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिवाइड होगा अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। Then the next application, that is the touch plate switch. देखो this is the diagram for the touch plate switch along with the IC 555. It is also called as a proximity switch. आप लोग इसको proximity switch भी बोल सकते हो। The touch plate is connected to the triggering terminal of the IC 555. तो देखो यहाँ पे triggering terminal है, यहाँ पे आप लोगों ने touch plate को connect किया है। It is operated in monostable mode. जैसे मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूज किया जाता है वैसे ही, मतलब आप लोगों का चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑन ऑफ होते रहेगा, टाइम पीरियड कम या बढ़ते रहेगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पे एलईडी ग्लो होगा और बजर बजने वाला है। तो दिस इज अबाउट द टच प्लेट स्विच। सो दिस लेक्चर समराइजेस विद, आपने क्या पढ़ा यहाँ पे, बेसिक्स ऑफ IC 555, pin configuration of timer IC 555, applications of IC 555. Thank you so much for listening this lecture very carefully. In the next lecture we will study about multi vibrator. Thank you so much.